اب رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے تو ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری آتی ہے جس کا نام ہے صدقۃ الفطر. موٹی زبان میں فطرہ بولتے ہیں، فطرانہ بھی بولتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب، ضروری اور کمپلسری قرار دیا ہے. صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ اس کو تھوڑا غور سے سن لیجئے. جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جس عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس آدمی اور اس عورت کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے. اور اگر کسی آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی ہے، جو کہ زکوٰۃ کے شرائط ہیں، اس اعتبار سے کسی آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس آدمی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ گھر میں ایسا سامان ہے جو کبھی کبھار استعمال کرتا ہے، جیسے گھر میں بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے ہیں، اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ ایک اور ایکسٹرا مکان ہے، چاہے خالی پڑا ہو یا کرائے پر دے رکھا ہو، اور اسی طرح کوئی زمین ہے، چاہے خالی پڑی ہو، بنجر ہو یا اس کا کرایہ آتا ہو، کھیتی باڑی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اپنی ایک گاڑی استعمال کرنے والی ہے، ایک اور ایکسٹرا گاڑی ویسے ہی رکھا ہوا ہے، استعمال میں لاتا ہی نہیں، کبھی سال میں ایک مرتبہ اس کو چلا لیتا ہے، امی نے دلایا تھا، امی کی یاد میں گاڑی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو انسان کی ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں اور اس کے پاس ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا حساب لگائیں اس کی قیمت کا. تو اگر اس کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یعنی آج کل کیا ڈیٹ ہے؟ آج 7 تاریخ اور مہینہ مئی، 7 مئی 2021، آج کے حساب سے 40 پر 2000 روپیہ یا 40,000 روپیہ. یہی بیان اگر کوئی آدمی 10 سال بعد سنے گا، ڈیٹ نہیں معلوم ہو، حضرت 40,000 بولی سمجھتے. بہرحال تو 40,000 روپیہ آج کل کے حساب سے 40,000 روپیہ بنتا ہے، تو پھر اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. صدقہ فطر بھی واجب، قربانی بھی واجب ہے. باقی تفصیل کے ساتھ میں نے زکوٰۃ کے مسئلے، فطرے کے مسئلے فجر کی نماز کے بعد میں نے اس رمضان میں بھی بیان کیا، رمضان سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے. جن لوگوں نے سنا ہے ان کو میں نے ابھی جو مسئلہ بتایا فوراً سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہرحال تو صدقہ فطر واجب ہے، اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا، اور اپنے گھر میں جو نابالغ بچے ہوں گے، چاہے وہ پاگل بھی ہو، مجنون بھی ہو، ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا. نابالغ بچے، اور بچہ کوئی بالغ ہے اور وہ پاگل ہے، اس کی طرف سے بھی نکالنا. اور بچہ بالغ ہے، اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک، چاہے اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کی طرف سے صدقہ نکالنا باپ کے اوپر یا ماں کے اوپر ضروری نہیں. خود اس بچے کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب نہیں، کیونکہ اس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہونا، کتنا 80 روپے ہمیں 40,000 اس کے پاس ہے کیا، یا 40,000 کے برابر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے کیا؟ نہیں ہے. لہذا اس بالغ بچے پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. تو باپ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی نکالے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی، اور گھر میں جو پاگل دیوانے بچے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی نکالے گا. بالغ بچوں کی طرف سے
बाप के ऊपर सदक़े फितर निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन निकाल देना चाहिए। मामूली सी रकम है, 80 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। औरत बीवी है, उसके ऊपर खुद उसका सदक़े फितर वाजिब है, लेकिन वो कमाने नहीं जाती, उसके पास कहां पैसा है। हाँ, शौहर पैकेट मनी देता है, महीने में 500 रुपया टैक्स वसूल करती है वो तो फिर वो खुद 80 रुपया दे दे, या शौहर उसकी तरफ से दे दे, अदा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अलबत्ता वाजिब उसी के ऊपर है, अदा चाहे कोई भी कर दे, अदा हो जाएगा। इसी तरह जो बच्चा गोद में है, दूध पी रहा है, उसकी तरफ से भी सदक़े फितर देना है। पेट में जो बच्चा है उसकी तरफ से सदक़े फितर नहीं। अगर ईद के दिन भी कोई बच्चा पैदा हुआ सुबह होने से पहले पहले, तो भी उसकी तरफ से सदक़े फितर देना है। सदक़े फितर देने का मकसद क्या है? दो है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोहरतन लिस्साइमी, रोजेदार रोजे की हालत में कितना भी एहतियात कर ले, चाहे आम आदमी हो या मस्जिद का इमाम हो, कितना भी एहतियात कर ले, थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती। बातचीत करने में थोड़ा ज्यादा बात कर लिया, कभी जबान से झूठ भी निकल जाता है गलती से, या जानबूझकर भी निकल जाता है, और कभी सुस्ती भी आ जाती है। रोजे में तकलीफ महसूस करके कभी रोजे के बारे में कुछ और ख्याल भी दिल में, कभी वसवसा भी आ जाता है। तो रोजा रखने की हालत में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो ही जाती है। उस ऊंच नीच को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फितर को वाजिब करार दिया कि तुम सदक़े फितर अदा कर दो, तो तुम्हारे रोजों के अंदर जो थोड़ी बहुत कमी कोताही आ गई है, तुमने जबान ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, बेकार अपना वक्त तुमने जाया कर दिया, या बेहयाई की कोई बात कर ली है, तो वो सब माफ हो जाएगा। थोड़ी बहुत छोटी गलती, काम तो ये समझेंगे रोजा रखा है, खा लिया, फितरा दे डालेंगे, ले रोजा टूट जाएगा, रोजा टूट जाएगा खा लेने से। तो छोटी छोटी गलती जिससे रोजा ना टूटता हो, ये भी जरूरी है। ऐसी गलती जिससे रोजा ना टूटता हो, वो अगर कर लिया है, तो फिर सदक़े फितर देने से अल्लाह पाक उन गलतियों को माफ कर देता है और तलाफी हो जाती है। अब बाज लोग कहेंगे सदक़े फितर रोजे में होने वाली कोताही का कफारा है, तलाफी के लिए है। मैं तो रोजेदारीश नहीं, लिहाजा मेरे ऊपर फितरा नहीं है। बाज लोग ऐसे भी हैं, अपनी तरफ से कैलकुलेशन करते रहते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर टैबलेट्स देता है, ऑइंटमेंट देता है, टॉनिक देता है और सलाइन बॉटल देता है, वहां अपना दिमाग नहीं लगाता। सलाइन बॉटल को पी ले तो लो, टॉनिक को मैं सर पे लगा लूंगा, टैबलेट को कूट को सुरमा बनाकर आंखों में लगा लूंगा, वहां वो अपना दिमाग नहीं लगाता। डॉक्टर से पूछता, पढ़ा लिखा है इन्हें, एमसीए अच्छा पढ़ा लिखा है, पूरा इंग्लिश उसमें क्या क्या लिखा है, एक्सपायरी डेट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, तरीका इस्तेमाल क्या है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, सब उसे मालूम। फिर भी क्या करता, डॉक्टर के सामने बिल्कुल जाहिल अनपढ़ बन जाता। डॉक्टर साहब ये गोली जरा देखो कैसा खाना की है, नाश्ते से पहले की बाद में की, ये टॉनिक एक ढाकन पीना, 2 पीना की, पूछता है नहीं पूछता है। लेकिन वही आदमी जब दीन के बारे में आता है अपनी तरफ से, नहीं ले भाई हजरत बोले ही रोजा रखते हुए गलती हुए तो सदक़े फितर देना सोगत है। मैं रोजाच नहीं, मैं बीमार आदमी, मैं रोजाच नहीं, इस वास्ते मेरे ऊपर फितरा नहीं है। लोग इस तरह हिसाब लगाते हैं। दीन इतना सस्ता बना लिया है, तो
समझ लीजिए, चाहे आप रोजेदार हो ना हो, सदक़े फितर दो, क्योंकि सदक़े फितर का दूसरा मकसद क्या है? तुअमतन लिल मसाकीन, गरीबों का पेट भरना। मोहल्ले में बहुत सारे गरीब हैं, आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, फ्रंट में, बैक में भी गरीब है। किसी की शक्ल सूरत देख करके ये ना समझे कि ये बड़ा सौकार है, नहीं, मालूम नहीं घर की हालत क्या है। देखने में साफ आदमी है, साफ कपड़े पहनता है, देखने में अच्छा है, घर में घुस के देखेंगे तब पता चलेगा खाने को भी है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानी जाहिर नहीं करते, लोगों के सामने बयान करते नहीं फिरते, वो अपना अल्लाह से दुआएं मांगते रहते हैं, अपना काम में लगे रहते हैं। तो मोहल्लों में तलाश करें, अपना घर छोड़ो, पड़ोसी के घर में जाओ, बात करो, खैरियत है, तबीयत कैसी है। महीने में 1 दफा 2 दफा पड़ोसियों के घरों में आते जाते रहेंगे, उनके हालात आपको मालूम होते रहेंगे। इस तरह से गरीब कौन है, किसको क्या परेशानी है, आपको मालूम हो जाएगी। तो रिश्तेदार हैं, मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसियों में से कोई गरीब है, उनका पेट भरना ये सदक़े फितर का मकसद है। ज़कात तो देते ही है, एक्स्ट्रा पैसा सहरी में, इफ्तारी में खर्च करते ही है, उसके अलावा सदक़े फितर के नाम पर दो, गरीब को दो। कम से कम कितना है? 80 रुपया हमारे शहर के हिसाब से तय किया गया है। आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दें, 800 900 रुपया भी आप दें, 1000 2000 रुपया भी आप घर के एक एक आदमी की तरफ से फितरा दें, कोई हरज नहीं है, मना नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो सदक़े फितर देना चाहिए। कब देना है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अद्दा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुम मक़बूला। जो आदमी ईद की नमाज को जाने से पहले पहले पूरे रमजान में कभी भी दे देता है, फहिया ज़कातुम मक़बूला, तो वो अल्लाह के यहां मकबूल सदका है। अल्लाह के यहां वो मकबूल सदका, अल्लाह ताला कबूल कर लेता है उसको, कि तुमने सही वक्त पर सदक़े फितर को दे दिया। ईद की नमाज को जाने से पहले पहले रमजान में कभी भी दे दिया तो क्या होगा? गरीब अपने ईद की नमाज के लिए, ईद के दिन खाने पीने के लिए तैयारी कर लेगा। आपके घर में गोश्त पकड़ा, वो भी थोड़ा गोश्त ला लेगा। आपके बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, उनके बच्चे भी कुछ नए कपड़े पहन लेंगे। वमन अद्दा बाद सलाती फहिया सदक़तुम मिनस सदक़ात। और जो आदमी सुस्ती और काहिली की वजह से सदक़े फितर को ईद की नमाज हो जाने के बाद देता है, तो वो कैसा है? आम सदका है। सदक़े फितर में जितना पावर है, जितना सवाब है, जितने फायदे हासिल होने चाहिए उतने हासिल नहीं होते। एक आम सदका का सवाब उसको मिलेगा। अब यहां भी बाज लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, ईद की नमाज से पहले दिए तो पूरा सवाब मिलता, कहते ईद की नमाज के बाद दिए तो उतना नहीं मिलता, कई को देना, जानने छोड़ो भाई, अगले साल देखेंगे। इस तरह भी बाज लोग समझते हैं, सही बोलता हूं, इस तरह भी बाज लोग समझते हैं। इसलिए आपका समझना मोतबर नहीं, मेरा समझना मोतबर नहीं। कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह ने, रसूल ने, साहबा ने, अइम्मे मुज्तहिदीन ने जो फरमाया वो सही है। समझ में आ गई बात? तो अगर आप भूल गए या सुस्ती काहली की वजह से भी ईद का दिन आ गया, अभी आपने सदक़े फितर नहीं दिया है, तो ईद के नमाज के बाद भी आप दे दें और अल्लाह से माफी मांग ले। समझ में आ गई बात? अल्लाह से माफी मांग ले। आपने एक आदमी को पैसा दिया 10,000 रुपया कर्ज, जून की 1 तारीख में ला को देना।
اب वो आदमी जून की पहली तारीख को 10,000 रुपया आपको लाकर नहीं दिया तो क्या तुम्हें छोड़ा दें? एक उन्हें मैं बोला इस डेट को ला को नहीं दिया, जान दे लो, छोड़ा देंगे भाई, नहीं छोड़ते। वड्डी चक्रवड्डी, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट उसके ऊपर लगा करके वसूल करते हैं नहीं करते हैं। इसी के बारे में अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नासी यस्तौफून, जब इनको किसी से कुछ लेना होता है पूरा एक खतरा भी नहीं छोड़ते। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून, जब इनको कुछ देना होता है उसमें घोटाला कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो सदक़े फितर एक बहुत बड़ी इबादत है। दो अहम मकासिद है, रोजे में होने वाली कमी कोताही की तलाफी इससे हो जाती है और गरीबों का पेट भरने का सामान हो जाता है। इसलिए सदक़े फितर जरूर दें, तलाश कर करके दें। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में जो गरीब हैं उनको तलाश करें और उसके बाद मोहल्ले में जो अड़ोस पड़ोस में गरीब रहते हैं और दूसरे दोस्त अहबाब में गरीब हैं उनको आप तलाश करके दें। इंशाअल्लाह बड़ा फायदा हासिल होगा। रमजान का महीना खत्म हो रहा है, एक एक लम्हा हमसे रुखसत हो रहा है, इसलिए बाकी जितने अय्याम रह गए इसमें अपने औकात को जाया ना करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत में लगाएं। और मस्जिद में रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिन का एहतिकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है, यानी पूरे मोहल्ले में से एक आदमी का कम से कम एहतिकाफ में बैठना जरूरी है, वरना गुनाह हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान और एक दो बड़ी उम्र के लोग भी एहतिकाफ में पूरे मोहल्ले की तरफ से बैठे हुए हैं। हम सबकी जिम्मेदारी वो लेकर के 10 दिन के लिए अपना कारोबार, घर, दुकान, मकान सब छोड़ करके आए हुए हैं। पानी नहाने भी नहीं जाना, उन्होंने नापाक हुए तो जाना सो, गर्मी हो रही है नहीं जाओ, पंखे में बैठ जाओ बस। हाँ, ज्यादा तंगी हो जाए, अब बिल्कुल बेचैनी है, तब उलमा गुंजाइश देते हैं कि पेशाब पाखाने के लिए जब जाओ तो आते आते एक बकेट फौरन डाल ले को आ जाओ, शैम्पू गते साबुना लगले तरह नहीं, इसकी इजाजत नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये लोग इतनी कुर्बानी दे करके यहां बैठे हुए हैं, मुच्छाम भी लंबे होगी, नाखुनाम भी लंबे हो जाती 10 दिन में, है कि नहीं? गर्मी में वो लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या उनकी खिदमत करना, क्या तो उनके घर से सामान आना है लाकर पहुंचाना, या सहरी इफ्तारी में खाने के लिए कुछ ला करके देना, दवाई चाहिए उनको या उनके घर वालों को, उसका भी ख्याल करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।